In the previous part of this lesson, named The Last Lesson, which was written by Alphonse Daudet, we have studied that when the writer was a young boy, he studied in school, and M. Hamel was the headmaster of the school. He was very strict, and he was so strict that no student had the courage to attend the class without completing his work. The writer did not complete the work, but after all, he started from his home. First of all, he wanted to spend his time at the sawmill, but he could not. But after that, he went to the military ground and he saw the practice of military men, and after that, he went to the bulletin board. There was a big crowd, and there was a usually two news came on the bulletin board. First of all, the news was that we have lost the battle, and the second, the draft has taken place in such and such part of the country. But why so many people were collecting there? It was the question. So he went there, but unfortunately, a man who knew him well, his name was Watcher, he said to him, "Bub, what are you doing here? This is the time of starting the school, you should go to school." Then the writer started toward the school. When he went to the school and he entered in the room, he noticed two things. The first thing was that M. Hamel was wearing green coat, frilled shirt and black silk cap. The second thing was noticed by him that the old persons of the village were sitting at the back benches. Among them, old Hauser, ex-mayor and ex-postmaster. They were holding their books and they were reading through their specs. He thought why they had come here and why Mr. Hamel was wearing new clothes. Because M. Hamel usually wore those clothes only on two occasions. Either there was inspection day or there was prize day. But today, neither the inspection day nor the prize distribution day. He was confused in this matter. Suddenly, M. Hamel said that, "Bub, stand up and tell me the rules of participation." He confused at the first word, and after that he said that he was unable to speak the single word. But M. Hamel said that, "I will not scold you today because you are not alone guilty cause." तो डियर फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा कि जो अल्फोंसे डोडेट हैं, जब वो छोटे थे तो एक स्कूल में पढ़ा करते थे और वहां पर एक हेडमास्टर हुआ करते थे जिनका नाम था एम हेमल। एम हेमल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और वह इतने स्ट्रिक्ट थे कि यदि स्टूडेंट्स उनके द्वारा दिया गया कार्य पूरा नहीं करता था तो वो स्कूल में क्लास अटेंड करने से डरता था। तो आज एम हेमल की क्लास का वर्क डॉडेट ने नहीं किया था, तो इसलिए वो डर रहे थे, लेकिन फिर भी घर से समय से निकले। कैसे समय बिताएं? सबसे पहले वो 100 मील के पास खड़े हो गए, उसके बाद वो मिलिट्री ग्राउंड खड़े हो गए और उसके बाद वो शहर में सीधे गए और वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था, वहाँ पर खड़े हो गए। वहाँ पर अक्सर दो न्यूज़ आया करती थी, हम युद्ध हार गए हैं या देश के फला फला भागों में अकाल पड़ा है। अब आज उन्होंने सोचा ये इतनी भीड़ क्यों है, तो जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उनका जानकार मिल जाता है जिसका नाम होता है वॉचर। पेशे से वो लोहार होता है। वो कहता है, "अरे बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो स्कूल स्टार्ट होने में काफ़ी देरी है, चलो स्कूल के लिए दो।" लेखक स्कूल की तरफ चल पड़ता है। जब गली में पहुंचता है स्कूल की, तो वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा होता है। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं आज संडे हो, लेकिन फिंगर पर काउंट करता है, संडे तो नहीं था, तो फिर इतना सन्नाटा क्यों? लेकिन खैर क्लास
रूम के बाहर जाता है और एम हैमल से परमिशन लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद दो चीज़ें वो नोटिस करता है। नंबर वन, कि जो क्लास थी उसमें गांव के बूढ़े बूढ़े लोग भी बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे, जिनमें एक्स पोस्ट मास्टर थे, एक्स मेयर साहब थे और ओल्ड होजर थे जिन्होंने तिकोनी कैप लगा रखी थी। और होजर ने तो अपनी प्राइमरी वाली पुस्तक को अपने घुटनों पर रखा हुआ था और चश्मे के माध्यम से उसको देख रहे थे। अब उनकी माइंड में एक बात आती है कि ये लोग पहले से पढ़ चुके, जॉब कर चुके, रिटायर हो चुके, तो इनको प्राइमरी पुस्तक की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा नोटिस करते हैं वो एम हैमल को। एम हैमल ने आज ग्रीन कोट, झालर वाली शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी। वो उन कपड़ों को अक्सर दो अवसर पर पहनते थे, या तो स्कूल में इंस्पेक्शन डे होता था तब पहनते थे, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था तब पहनते थे। तो ऐसा आज कौन सा विशेष अवसर आ गया है जो उन्होंने ये कपड़े पहने हैं, ये क्वेश्चन उनके माइंड में खटक रहा था। और इसी के साथ आगे हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूड नेक्स्ट पार्ट। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज धमकाऊंगा नहीं मेरे प्यारे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, कि हम प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो काफी समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम आज कहां आ गए हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही तो सबसे बड़ी परेशानी होती है विद अल्सास, अल्सास वालों के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह अर्थात वहां के लोग अपना आज का कार्य कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब देखो कि वो लोग कहां आ गए हैं, द राइट टू से टू यू, और वो तुमसे कहेंगे हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि कैसे तुम बहाना बनाते हो फ्रेंचमैन होने का, एंड यट यू कैन नेदर स्पीक, लेकिन न तो तुम बोल सकते हो, नो राइट योर ओन लैंग्वेज, न तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, मेरे प्यारे फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, अर्थात हम सभी में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। अर्थात इस पैसेज में जो एम हैमल हैं वो लेखक को फुली रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे हैं कि उसने लेसन तैयार नहीं किया, उसने काम नहीं किया, बल्कि वो अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर तुम सीख नहीं पाए तो इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं दोष है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वो प्राथमिकता देते थे इस बात पर कि तुम्हें किसी फार्म पर रखा जाए और एट द मील्स या किसी मील में रखा जाए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा सा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप पर भी दोष लगाता हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि बेटा जाओ और मेरी फूलों की क्यारी में मेरी फूलों की क्यारी में पानी दो। अर्थात तुम यहां पढ़ने आए थे
और मेरा ये कर्तव्य था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, ना कि मैं तुम्हें यह आदेश करूं कि तुम फूलों की क्यारी में पानी दो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था तो मैं तुम्हें कहता था कि बेटा जाओ, तुम्हारी छुट्टी, अर्थात ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तब एक बात से दूसरी बात निकलती चली गई और एम हैमल ने जारी रखा बात करना फ्रेंच भाषा के बारे में। सेइंग दैट, उन्होंने कहा, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे सबसे सुंदर भाषा होती है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कपूर्ण भाषा होती है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें हम सब के बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब व्यक्ति गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब वो काफी लंबे समय तक अपनी भाषा को होल्ड किए हुए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, और ये ऐसा होता है जैसे उनकी जेल की चाबी उन्हीं के हाथ में हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की बुक को खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि मैं आज कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था। ऑल ही सेड, जो भी कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, वो बहुत ही आसान दिखाई पड़ रहा था। आई थिंक टू, और मैंने सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं सुना था। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और ना ही उन्होंने कभी इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। एवरीथिंग वॉज सो मच पेशेंस, सभी कुछ इतना धैर्य के साथ हो रहा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि ये बेचारा व्यक्ति कौन? एम हैमल, कि जैसे कि एम हैमल चाहते थे कि वो सभी कुछ हमें दे दें जो कुछ ही न्यू वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, वहां से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स टू वन स्ट्रोक, और वो चाहते थे कि वो एक ही झटके से सब कुछ हमारे मस्तिष्क में डाल दें। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर का लेसन कराने के बाद उन्होंने हमें कुछ लेखन का कार्य दिया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए कुछ नई कॉपीज लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनको बहुत ही सुंदर तरह से लिखा गया था, और उस पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे वो एक झंडे की तरह तैर रहे हो। प्रत्येक जगह हमारे कमरे में, स्कूल के रूम में, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो हमारे डेस्क के सामने एक रोड में लटके हुए। And how quiet it was. Sorry. You ought to have seen how everyone sat to work. और तुम देख सकते थे कि प्रत्येक बच्चा पूरी तरह से अपने कार्य में लगा हुआ था। And how
क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक तरह की आवाज आ रही थी, पेन के चलने की आवाज थी जो पेपर पर आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, एक बार कुछ बीटल पक्षी भौरे अंदर आए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on the tracing their fish hook, वो ट्रेस कर रहे थे, छपाई का कार्य कर रहे थे their fish hook पर, as if that was French too, और आज फिश हुक भी ऐसा लग रहा था मानो कि ये भी फ्रेंच भाषा का ही कोई लेसन हो। On the roof the pigeon cooed, छत पर जो कबूतर थे, cooed वेरी लो, वो बहुत ही धीमी आवाज में गा रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, कि क्या ये भी जर्मन में ही गाएंगे, ये कबूतर भी, अर्थात नेक्स्ट डे से जर्मन स्टार्ट हो जाएगी, तो आज ये फ्रेंच में गा रहे हैं तो क्या कल से ये भी जर्मन भाषा में ही गाएंगे। Whenever I looked up from my writing, जब कभी मैंने अपने राइटिंग पेपर से ऊपर की ओर देखा तो आई सॉ, मैंने देखा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, एम हैमल बैठे हुए थे बिल्कुल स्थिर अवस्था में, इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो निहार रहे थे, घूर रहे थे प्रत्येक वस्तु को, देन एट अनदर, फिर दूसरी को, as if he wanted to fix, मानो कि वो फिक्स कर देना चाहते हो, स्थिर कर लेना चाहते हो, in his mind, अपने मस्तिष्क में, just how everything looked in that little school room, उन सभी वस्तुओं को जो उस छोटे से स्कूल के कमरे में दिखाई पड़ रही थी। फैंसी, कल्पना कर रहे थे। for 40 years, उन 40 वर्षों की, he had been there in the same place, जहां पर वो उसी स्थान पर थे 40 वर्ष पहले। विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर की ओर बागीचा था, द विंडो, जो खिड़की से देखा जा सकता था, एंड इन हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लास के सामने, जस्ट लाइक दैट, सब कुछ वैसा ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल डेस्क और बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, काफी स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन, बागीचे में, वर टॉलर, वो लंबे हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन थी, अंगूर की, और जो बेलें थी, वो भी काफी बड़ी हो गई थी। हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और वो घूमती हुई वो विंडो से छत की ओर ऊपर आ रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और आज उनका दिल कितना दुखी हो रहा था इन सब को छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, टू हियर, मैंने सुना, हिज सिस्टर, उसकी बहन को, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो ऊपर की ओर कमरे में चल रही थी, पैकिंग दियर ट्रंक, और अपने ट्रंक को पैक कर लिया था उसने। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट, क्योंकि अगले दिन उन्हें उस कंट्री को छोड़ना था, उस जगह को उन्हें छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन एम हैमल में साहस था हमारे लेसन को अंत तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, उन्होंने हमें एक हिस्ट्री का लेसन दिया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा, बे, बी, बो, बू, तो बच्चों ने ये गाना शुरू कर दिया, बा, बी, बू, बू आदि।
डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, और उसके बाद कमरे में बैक साइड में ओल्ड हुजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, बूढ़े हुजर ने भी अपना चश्मा पहन लिया, एंड होल्ड हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और दोनों हाथों से अपनी प्राइमरी की पुस्तक को पकड़ लिया। स्पेल द लेटर्स विद देम, और उन्होंने लेटर्स को स्पेल करना, उच्चारण करना शुरू कर दिया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज थी उसमें एक इमोशन था, इमोशन की वजह से वो कंपन आ रही थी आवाज में। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और बड़ा ही मजाकिया लग रहा था टू हियर हिम, उनको सुनना। बट दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और मुझे अच्छी तरह से याद है ये अंतिम लेसन। तो मुझे अच्छी तरह से ये अंतिम लेसन याद है कि किस तरह से वो कभी रो रहे थे और किस प्रकार से वो अपने लेसन को सुना रहे थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, तभी मैंने सुना कुछ नगाड़ों की आवाजों को, जिसको पर्शिया के सैनिक जब अपनी प्रैक्टिस से लौट रहे थे वो बजाते हुए आ रहे थे, और वो हमारे उसी कमरे की खिड़की के नीचे से गुजर रहे थे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही पीले दिखाई पड़ रहे थे। इन ए चेयर, अपनी चेयर से खड़े हो गए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ उनके गले में फंस गया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह अपनी बात को आगे कंटिन्यू नहीं रख सके, जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उसे पूरी शक्ति के साथ पकड़ा। एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने लिखा जितना लंबा वह लिख सकते थे। वाइब ला फ्रांस, दीर्घजीवी हो फ्रांस, अर्थात ये एक पैट्रियोटिक फीलिंग उनके अंदर से आई, अर्थात अपने देश के लिए उन्होंने दीर्घायु होने की शुभकामना की। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वह कुछ समय के लिए रुके। एंड लीन हिज हेड, और उन्होंने अपना सिर झुकाया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार की ओर गर्दन करके। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले। ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने उसी हाव भाव के साथ। टू अस, हमसे कहा। विद हिज हैंड, केवल अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त होता है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। अर्थात इस तरह से एम हैमल इतने लास्ट में इमोशनल हो गए कि वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं कह पाए कि क्लास ऑफ होती है, आप जाओ। केवल हाथ से इंडिकेशन किया कि क्लास ऑफ होती है, आप जा सकते हो। द लेसन इज एंडेड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।